Hello my dear students, welcome to my channel Patel Science Academy. Dear students, in this lecture I am going to teach you about the chapter number 9, control and coordination. Dear students, before we go in the depth of this topic, I would like to tell you that from this chapter this year for 2020-21, 9.5, 9.6, 9.7 and 9.15, these three topics 9.6, 9.7 and 9.15, these three topics are reduced, and I'll teach you all the topics except this topic this year. Dear students, this chapter is the name of this chapter is control and coordination and human nervous system. I'll teach you here. Dear students, human nervous system, it has three parts, the or the three types, and the name of that three types is CNS, PNS and ANS. Dear students, CNS means central nervous system, PNS means peripheral nervous system, and ANS means autonomous nervous system. So dear students, I'll explain you about the central nervous system. Dear student, simply nervous system is the system that controls all the systems of our body with the help of or in the coordination of the endocrine system. As a neuroendocrine system means a neuroendocrine system, there are two systems, endocrine system and nervous system. Both of these system controls the body parts of all the living almost all the human being and animals. So dear students, these are divided into three types: CNS, PNS and ANS, and we'll see all the points one by one. Central nervous system. Dear student, what is central nervous system? It consists of the brain and the spinal cord, hence it is called, because it consists of brain and spinal cord, especially brain, that's why it is called central nervous system. And there are these are the two parts of the central nervous system, brain and spinal cord. And what are there and what are the points they are included in this central nervous system? Dear students, as I told you, there is a brain, and this brain, the protection of the brain. First of all, we'll see the protection of the brain. Dear student, protection of the brain, it is enclosed in a bony box called the cranium. Dear students, जो ब्रेन होता है वो बोन के एक बॉक्स में कवर होता है और उस बॉक्स का नाम है, यानी उस बोन की लेयर का नाम है cranium cavity या cranium. तो डियर स्टूडेंट, cranium जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है और ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है और इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है. डैट्स वाई ये ब्रेन जो है क्रेनियम नाम की कैविटी में जो है इनक्लोज रहता है. डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन के पास और तीन प्रोटेक्टिव लेयर हैं जिनको टुगेदर वी कॉल मेनिंजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन यहाँ पर सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे. अभी हमने देखा नर्वस सिस्टम तीन टाइप के हैं. नर्वस सिस्टम को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: CNS, PNS, ANS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो जिसमें से मैं अभी आपको ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ. ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर, ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है? एक तो है बोन से बनी हुई क्रेनियम कैविटी, और बाकी जो है वो तीन लेयर से बनी हुई एक प्रोटेक्टिव ट्रिपल लेयर है, उसका नाम है मेनिंजेस. तो हम वन बाय वन वो सभी देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल पटेल साइंस एकेडमी इन द यूट्यूब. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड और नाम देखते हैं उन तीन मेनिंजेस लेयर के. तो डियर स्टूडेंट्स, एक का नाम है ड्यूरामीटर, दूसरे का नाम है एरिकनॉइड मैटर और तीसरे का नाम है पाया मैटर. सो डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम सब देखते हैं. पहले देखते हैं ड्यूरा मैटर. डियर स्टूडेंट, ड्यूरा मैटर इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन. ये तीन मेनिंजेस, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, तो तीन मेनिंजेस में सबसे ऊपर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम है ड्यूरा मैटर. वो कैसी होती है? टफ होती है, फाइब्रस होती है, नॉन वास्कुलर होती है. तो ये इसके कुछ फीचर है, आप याद रखिए. इट इज़ टफ, फाइब्रस, नॉन वास्कुलर मेनिंज लाइनिंग इन द इनर साइड्स ऑफ द क्रेनियम. तो डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखिए, ड्यूरा मैटर जो है आउटर मोस्ट लेयर है और इसका काम है
प्रोटेक्शन करवाना। उसके बाद देखते हैं एरिकनॉइड मैटर। डियर स्टूडेंट, एरिकनॉइड मैटर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजेस। जैसे ये सबसे सपोज़ ये अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो उसके नीचे की जो लेयर होगी वो होगी एरिकनॉइड मैटर। और ये कैसी रहती है, ये थिन रहती है, नॉन वास्कुलर, इसमें कोई वेसल्स नहीं है। और दिस मैनिंग्स हैव अ वेब लाइक अपीयरेंस, इसका वेब की तरह अपीयरेंस होता है। और उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आता है सबसे नीचे पाया मैटर। पाया मैटर जो इनर मोस्ट मेनिंजेस है, मेनिंज है। यस स्टूडेंट, इट इज़ द इनर मोस्ट एंड हाईली वास्कुलराइज्ड मेनिंज। इसमें बहुत सारे वेसल्स होते हैं और विच लाइज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि ब्रेन की सबसे पहली मेनिंज अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए पाया मैटर। उसके ऊपर की कौन सी आनी चाहिए, एरिकनॉइड मैटर। और सबसे ऊपर की कौन सी आनी चाहिए, ड्यूरा मैटर। उसके ऊपर क्या आना चाहिए, क्रेनियम कैविटी, बोन से बना हुआ। तो अगर अपन बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कैसे होगा, सबसे ऊपर बोन का कवर जिसको क्रेनियम कैविटी, क्रेनियम बोले हैं। उसके नीचे जो है 3 मेनिंजेस, 3 में सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, उसके नीचे यानी मिडिल में एरिकनॉइड मैटर, और उसके नीचे पाया मैटर, और पाया मैटर के नीचे ब्रेन। इस तरह से ये सॉफ्ट ऑर्गन जो ब्रेन है ये अपने बॉडी में रहता है और अपने पूरे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमने मेनिंजेस देखा है ये 3 लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर है। तो वो 3 लेयर में अभी मैंने आपको बताया है ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर, एरिकनॉइड मैटर मिडिल लेयर एंड पाया मैटर इनर लेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरा मैटर जो है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर ये दोनों वॉल हो गई और लेयर है, ये दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप में जो है एक लिक्विड रहता है और उस एक स्पेस रहती है और उस स्पेस में एक लिक्विड रहता है, वो क्या है हम देखते हैं। उसके बाद फिर मिडिल लेयर और इनर लेयर दोनों के बीच में फिर से एक स्पेस है और उसमें भी एक लिक्विड है, उसका क्या नाम है वो सब हम देखते हैं इस स्लाइड में। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलो, और ये जो स्पेस आपको दिख रही है जो नीचे वाली लेयरों के बीच में है यानी मिडिल और इनर लेयर के बीच में, ये भी ऊपर वाली के नाम पर ही है यानी सब एरिकनॉइड स्पेस, और इसमें भी एक लिक्विड होता है, इट इज़ फिल्ड विद द CSF। डियर स्टूडेंट, CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये जो है नीचे की लाइन में नीचे की लेयर में नीचे की स्पेस में होता है और ऊपर जो है दूसरी वाली जो स्पेस है सबड्यूरल स्पेस, उसमें सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब देखते हैं थोड़ी सी डिटेल हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। डियर स्टूडेंट, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है देख लेते हैं। इट इज़ एन अल्कलाइन लिम्फ लाइक वाटरी फ्लूइड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वाटरी फ्लूइड है, पानी की तरह रहता है, वाटर की तरह, लेकिन अल्कलाइन इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर नहीं है। अल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर है और इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की डियर स्टूडेंट 2 पार्ट है, तो वो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि ब्रेन का एक पार्ट जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उस वेंट्रिकल में ये CSF नाम का फ्लूइड भरा हुआ होता है। और कहाँ रहता है, अपने बॉडी ऑर्गन में सब एरिकनॉइड स्पेस में। अभी मैंने आपको बताया वो सब एरिकनॉइड स्पेस किसको बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन द एरिकनॉइड मैटर एंड द इनर मोस्ट पाया मैटर। तो वो उस स्पेस में भी ये है डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन का जो पार्ट है वेंट्रिकल्स उसमें भी ये है, और कहाँ पर है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, उसका एक पार्ट है सेंट्रल कैनाल, वो उसमें भी यही भरा हुआ होता है डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे आई होप कि आपको यू आर गेटिंग इट एंड यू आर नॉट बीइंग कंफ्यूज रिगार्डिंग द स्मॉल एंड वेरी सिंपल पॉइंट ऑफ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत ही सिंपल से पॉइंट देखे हैं। ब्रेन का पार्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से पूरी बेसिक पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ये सब याद रखना ही पड़ेगा, वरना ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, जो कि रिड्यूस सिलेबस वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है द ह्यूमन CNS।
human central nervous system, it has about 120 milliliter of CSF. It means in the human central nervous system, about 120 ml of cerebrospinal fluid is found there. And this is very amazing thing, because human is the most well developed organisms of the world. So it consists of this question can be asked in the examination also, so you can remember it. In the human body, in the human central nervous system, there is about 120 ml of CSF, cerebrospinal fluid is found. And what are the role and functions of the CSF? Dear students, CSF, it acts as a shock absorber. This is the most important function of this cerebrospinal fluid. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेन एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और बहुत ही ज़्यादा नाजुक ऑर्गन है, तो इसका प्रोटेक्शन और इसको शॉक से बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या और कोई ऐसा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया जिसमें ब्रेन को डैमेज होने का डर है या फिर जो है उसको शॉक लगने का डर है, तो सबसे पहले इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का जो फ्लूइड है, जो स्पेस में है, नीचे वाली स्पेस में, वो इसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन को बचाता है। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, और मैकेनिकल इंजरीज से ब्रेन को बचाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये फंक्शन आप इसके याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। CSF ऑल्सो मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रेनियम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट मटेरियल बिटवीन द ब्रेन टिश्यू एंड द ब्लड और ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है उसमें, या स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है और वेस्ट मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना पड़ता है ब्रेन के, और वेस्ट मटेरियल को जो है, जो हर बार ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म जो तैयार होते हैं बॉडी में, उसको बॉडी से निकाल के फेंकना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज है ब्रेन टिश्यू और ब्लड के बीच में, ये भी पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस CSF, cerebrospinal fluid. Thereafter, the next point it includes it supplies the oxygen to brain. So brain get oxygen only because of this CSF, cerebrospinal fluid. Thereafter, the next point is CSF protects the brain from the desiccation. This process is from this process, brain is protected by the CSF once again. So these are being the most important part of the central nervous system by the CSF, cerebrospinal fluid. And dear student, this cerebrospinal fluid, it is playing very important role. Let's see the one more function or role of the CSF, cerebrospinal fluid. CSF is secreted by the choroid plexus and the ependymal cells. Choroid plexus and the ependymal cells are responsible for the secretion of the CSF. So this is again being a most important part in the central nervous system. So you can remember the name of the choroid plexus and the ependymal cells, and you can remember it because CSF is secreted by the cell choroid plexus and ependymal cells. So dear students, this is about the slides, and I hope you are getting it. Let's see one more slide regarding the parts of the brain. So dear students, as you know, brain is the most important and the big organ of our body. So let's see the different parts of our brain. So dear students, brains, it is divided into these three parts. Part number 1 of the brain, it is called forebrain or prosencephalon, PROSEN, prosen. Dear student, there is one more term for the brain, that is called cephalon. So prosencephalon is the first part, or forebrain, FORE, fore means front. So forebrain is the first part of our brain. Second part is the midbrain, MID, mid means middle. So this is the middle part of our brain, and in the another terminology, it is called mesencephalon, as it is called prosencephalon. Prosencephalon means the brain located at the front side,
the front part of the brain, and then middle part it is called mesencephalon, and then hind brain. Hind means the back side, so this is also called rhombencephalon. Rhombencephalon, this part is known as the last part or the third part of the brain. So dear students, likewise cephalon is divided into three parts. Cephalon means brain. Brain is divided into three parts. Part number one, forebrain, the part located at the front. Then the second part, midbrain, and the third part, hindbrain. So this is about brain and its three parts. So I'll explain all the parts one by one in the next lecture. So dear student, thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel Patel Science Academy, and do like it, share it, and comment is compulsory. Do comment for the lecture. Thank you very much.